Good morning, student. So today we are going to see the new chapter, mechanical properties of the fluid. So this chapter I have taken some minute before, and I have also discussed here the 4 properties of the fluid on the Google Meet channel. But here some students told me there is so many problems while joining the meeting and they can't hear my clear voice with the noise, and there are the certain problems. So I quit that channel and I want to again discuss this topic on the YouTube channel now. So dear student, I have no problem. I will repeat again it. So dear student, here the chapter name is the mechanical properties of the fluid. So here we have know there are 4 states of the matter. How many states? 4 states of the matter. So what are the states of the matter? Number first is the solid state, liquid state, gaseous state, and plasma state. So here are the 4 states of the matter: solid, liquid, gas, and plasma. What do you mean by solid? Solid means here the materials or the substances which have fixed shape and volume is called as the solid. जैसे कि मान के चलते ये मेरा चौक है, ये चौक कैसे बना है? नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है चौक है, लेकिन इसका शेप फिक्स है। इसका शेप क्या है? फिक्स है। ये डस्टर मान के चलते, दिस इज द डस्टर हैविंग द रेक्टेंगुलर शेप और पैरेलल like shape or the cuboid shape. These shapes are the fixed shape. Here volume is the fixed, means they cannot change under the action of the external force. So here this substance which maintains its fixed shape and volume, which cannot change under the action of the external force, that is called as the solid. इसको क्या बोलेंगे अपन? Solid बोलेंगे. Like the chalk, duster, for example. So these are the solids. अब दूसरी बात क्या करते हैं आपने? लिक्विड. लिक्विड क्या है? Again, these are the materials or the substance which can take shape and volume of the container in which they contain. जैसे मान के चलते कि मुझे क्या करना है कि 1 लीटर ऑफ द मिल्क लाना है। मुझे क्या करना है? बाजार में जाके 1 लीटर दूध लाना है, और मैं दूध काय में लाऊंगा? एक दूध का पैकेट आता है 1 लीटर का, ऐसे इसमें पैकेट में 1 लीटर दूध आ जाएगा, और वही दूध मैंने निकाला और काय में रखा? भी मेरे घर के डिब्बे में रखा। तो क्या होगा? ये दूध का शेप जो है, ये मिल्क का शेप नॉट शेक, तो ये शेप क्या होगा? बदल गया। पहले वो पैकेट में था, अब काय में आया? डिब्बे में आया। और बाद में क्या किया मैंने? वही दूध को लिया और कहाँ रखा मैंने? अपने ऐसे थाली में रखा, प्लेट में रखा। तो वही दूध का शेप क्या हो रहा है? यहाँ पे चेंज हो रहा है। पहले क्या था? पैकेट का शेप था, दूसरे इसमें काय का शेप था? डिब्बे का शेप था, और तीसरे इसमें काय का? थाली का, यानी से प्लेट का शेप आया। मतलब इसका here the materials or the substances which can take the shape of the container or the vessel, that is called as the liquid. Liquid like the water, example water, oil, etc. So this is the second state of the matter. Number 3 is the gaseous state. And the gas is the mixture of the various gas. Containers are there. Containers means gas containers. Oxygen will be there, hydrogen will be there, many gases is the mixture. हवा क्या है? Air is the mixture of the various gases. तो इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, मीथेन है, so and so. So there are the so many gases, and so the mixture of various gases makes the air. Again मैंने क्या किया? गैस को मैंने कंटेन किया हूँ काय में? बॉक्स में।
तो इसका वही होगा जो लिक्विड स्टेट में हुआ। क्या होगा कि वो जिस कंटेनर में रखा गया है उसी का ही वो क्या होगा अपना शेप या फिर वॉल्यूम ले लेगा। सो दिस इज द गैसियस स्टेट। ये क्या होगा गैसियस स्टेट। एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये क्या है? सो दिस इज द गैसियस स्टेट। नंबर 4 स्टेट ऑफ द मैटर इज द 4 स्टेट्स ऑफ द मैटर द प्लाज्मा स्टेट। अभी तक अपन ने क्या देखा? 3 स्टेट देखा, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। बट नाउ व्हाट डू यू बाय द प्लाज्मा स्टेट? ये प्लाज्मा क्या होता है? सपोज हियर इज द गैस कंटेन इन अ कंटेनर, और मैं ये गैस को क्या करूँ आयोनाइज करूँ। आयोनाइज करने में क्या होता है कि जिसमें भी पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस है, पॉजिटिव एटम है तो नेगेटिव एटम है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ सेपरेट कर रहा हूँ। मीन्स हियर द गैस इज सपोज आयोनाइज, it will be produces positive and the negative equal number of the charges, and if this gas conducts under the some suitable condition, then that states of the matter is called as the plasma state. Means that equal number of the positive and the negative charges of the ions will be there and they conduct, and that state, that conducting states of the gas is called as the plasma state. But here, in the chapter of we have to see here the mechanical properties of the fluid. What do you mean by fluid? ये fluid क्या है? Fluid यानी क्या है? जैसे कि अपन मान के चलते हैं fluid यानी क्या होता है? वाटर होता है, पर लेकिन ये क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है। Means this is the phase of matter which contains all these, means liquid, gas and plasma. ये तीनों के तीनों क्या होता है? फ्लूइड बनाता है। ये फ्लूइड के अंदर आ ही जाता है। Means here fluid is the phase of the matter which contains the liquid, gas and plasma. This is called the fluid. और fluid की एक खासियत होती है, ये क्या होता है? बहने लगते हैं। जैसे क्या क्या मैंने ग्लिसरीन लिया और ग्लिसरीन का बोतल मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया अपने फर्श को, तो क्या होगा? वो बहने लगेगा। जैसे कि क्या है, कोई एयर है, हवा, मैंने ऐसे क्या किया, हवा बहने लगेगी, गैस बहने लगेगा। मीन्स दिस सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो यानी बहना, बहने, मीन्स दिस सब्सटेंस दैट कैन फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ऑफ फोर्स, दैट इज कॉल्ड द फ्लूइड। Here the definition of the fluid is that fluid can be defined as the substance which can flow under the action of external force is called as क्या? fluid. एग्जाम्पल के तौर पर टूथपेस्ट, जैसे कि मैं इसको थोड़ा दबाता हूँ वो फ्लो होने लगेगा। जैसे कि मैंने टूथपेस्ट का जो ये आता है पाउच आता है, इसको मैंने दबाया, वो क्या होता है? बाहर आ जाता है, तो फ्लो होता है। वैक्स है, गैस है, एयर है, these are the examples of the fluid. Now here is the properties of the iron fluid. But here one thing is very important. While in the case of this solid, if the external force is applied, external force applied करने के बाद solid क्या करेगा? उसकी पोजीशन, उसका चेंज इन शेप को क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा। Means here suppose here is the solid, अगर ये मान लीजिए चलती है सॉलिड है और सॉलिड पे मैं क्या कर रहा हूँ? फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंसी, तो ये क्या हुआ? सॉलिड होगा, और ये सॉलिड अपने आप क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा, अपोज करेगा। काय को? अपना शेप चेंज करने के लिए रेजिस्ट करेगा, अपोज करेगा। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द प्लास्टिसिटी। अगर ये चेंज होता है और अपने स्थिति में आ जाता है, तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी एंड द प्लास्टिसिटी आर द टू प्रॉपर्टीज। बट हियर व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड एक्सटर्नली ऑन द सॉलिड, इट विल रेजिस्ट एंड डेवलपिंग द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स विद इन द बॉडी, एंड दैट्स व्हाई द बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स शेप एंड साइज, एंड दैट फोर्स which is applied on the body per unit area is called as the stress. और स्ट्रेस के भी कितने टाइप होते हैं? जब ये फोर्स मैं क्या करता हूँ, ऐसे लेंथ वाइज मैं क्या करता हूँ? अप्लाई करता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज द टेंसाइल और द लामिनर स्ट्रेस।
अगर मैं किसी सॉलिड के वॉल्यूम पे फोर्स अप्लाई करता हूं तो क्या बनेगा वो बल्क मॉडुलस या तो फिर वॉल्यूम स्ट्रेस। अगर किसी शेप पे मान के चलते कोई पैरेललोपिड है, इसके ऊपर मैं टेंजेंशियली क्या करता हूँ फोर्स अप्लाई करता हूँ लाइक दिस, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ वो फेस ए बी सी डी, एक मैंने फेस किया है क्या भी साइड हियर, इसका कितना है ये स्क्वायर है, स्क्वायर टाइप का फेस है, इसका साइड कितना है ये का। मैं क्या कर रहा हूँ ये टेंजेंशियली फोर्स में यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ टेंजेंशियली फोर्स, तो ये क्या करेगा अपना पोजीशन यहाँ पे चेंज करेगा डी डिस्प्लेस टू डी डैश, therefore here you put a new position at the d dash making an angle theta. Similarly here the position of the c will be displaced here, the c will be appear or displaces at the new position that is c dash, ये c dash है और ये एंगल कितना बनेगा थीटा का बनेगा। अब ये क्या हुआ d dash and this c dash are the new positions, means here the shape a b c change into the new shape that is a b c and dash, means here the force is applied tangentially to the upper surface of the ABCD surface. So this shape will be changed here and that is called as the shearing stress or the shearing stress or the shear. This happen only in the case of this solid and this is not applicable for the gas and the liquid. ये shearing stress जो है ये गैस और इसको क्या करेगा अप्लाई नहीं हो सकेगा, तो क्या है सॉलिड अपने आप क्या करेगा वो उसको रेजिस्ट करेगा अपोज करेगा, बट लेकिन लिक्विड और गैस स्टेट में वो अपने आप रेजिस्ट नहीं करेगा। रेजिस्ट करेगा तो क्या होगा वेरी लिटिल क्वांटिटी में क्या करेगा वो अपोज करेगा अपनी पोजीशन अपना शेप अपना वॉल्यूम चेंज करने के लिए। देयरफॉर हियर the fluid have the very low resistivity, low resistance to the stress, और स्ट्रेस कौन सा होगा कॉम्प्रेसिबल स्ट्रेस होगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होगा। जैसे कि इसका क्या शेप चेंज करने के लिए वो क्या करेगा बहुत ही छोटा सा बहुत ही थोड़ा सा रेजिस्ट करेगा या तो फिर निग्लिजिबल रेजिस्ट करेगा या तो फिर रेजिस्टेंस नहीं करेगा अपोज नहीं करेगा अपना शेप बदल देगा कौन फ्लूइड। So here the fluid substance which can flow under the action of the external force is called as the fluid. Examples are here match toothpaste gas and air. ये देखा मैंने shearing stress करेगा मुझे shear stress, ये क्या करेगा अपना चेक कर देगा शेप, और लेकिन ये सॉलिड में होगा लिक्विड एंड गैस में नहीं होगा क्योंकि क्या होगा सॉलिड ये रेजिस्ट करेगा और लिक्विड एंड गैस रेजिस्ट नहीं करेगा, यहाँ दी वेरी लो रेजिस्टिविटी वेरी लो अपोजिशन फोर्स ऑफ अपोजिशन, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज द फ्लूइड। You understand here? So now here is the ideal fluid. What do you mean ideal fluid? but लेकिन ideal fluid होता क्या है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। आइडियल फ्लूइड वो होता है कि ये प्रॉपर्टीज number first is the incompressibility, second one is the irrotational, number third one is the non-viscous and number fourth property is the steady fluid। अगर कोई फ्लूइड ये चार प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट इज द incompressibility, second one is the irrotational, number third one is the non-viscous, नंबर फोर्थ इज द स्टेडी फ्लो। अगर ये चारों प्रॉपर्टीज कोई फ्लूइड क्या करता है एग्जीक्यूट करता है ये फॉलो करता है अलाउ करता है तो दैट फ्लूइड इज कॉल्ड द आइडियल फ्लूइड। उसे क्या कहा जाएगा आइडियल फ्लूइड कहा जाएगा। ये द फ्लूइड व्हिच फॉलो द फोर प्रॉपर्टीज, मींस फर्स्ट वन इज द incompressibility, irrotational, non-viscous and steady flow. These are called as the ideal fluid. So here what do I mean incompressible? जैसे कि मैंने कोई गैस लिया और लेकिन जब मैं गैस लेता हूँ तो गैस को मैं क्या करता हूँ एक्सटर्नली मैं क्या करता हूँ इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ गैस के ऊपर, ये गैस के बाहर ये फोर्स
लिसन केयरफुली, ये गैस। तो क्या होगा, जैसे कि कोई पंप है, जैसे कि साइकिल में अपन हवा फिलअप करते हैं, साइकिल के ट्यूब में, मोटरसाइकिल का ट्यूब हो या तो फिर कार का ट्यूब हो, इसमें वो हवा एयर क्या करते हैं, फिलअप करते हैं। तो जैसे जैसे वो क्या अपना पिस्टन जो है दबाते हैं अंडर द एक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, पिस्टन दबाते जा रहे दबाते जा रहे दबाते जा रहे, तो क्या होगा, जिसके अंदर पिस्टन के अंदर क्या है, गैस है, एयर है, वो तो कॉम्प्रेस हो रही है। बट लेकिन अपन क्या बोल रहे हैं कि इनकॉम्प्रेसिबल, कॉम्प्रेस होना यानी दबना, प्रेस होना, इनकॉम्प्रेसिबल मींस no change in the density. Here the density of the fluid or gas must be constant. This property is called as the incompressibility or the incompressible. But various gases, many gases get compressed under the action of the external force or the pressure. Again they are called as the fluid. But here is the certain condition of the temperature. But when at the certain temperature, the density of the gas or the density of the fluid remains constant, that property is called the incompressibility or the incompressible. And if this property is followed by the gas or the fluid or the liquid, they are called as the ideal fluid. बट लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा कोई भी लिक्विड लो, कोई भी फ्लूइड लो, कोई भी गैस लो, वो तो कॉम्प्रेस होगा ही होगा अंडर द एक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। अगर ये एग्जिबिट होता है तो क्या बोलेंगे आप इसको, आइडियल। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी होता है इरोटेशनल, इरोटेशन। अब फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड वो सब्सटेंस होता है कि जो बहने लगता है, जो बहता है, फ्लो होता है। जैसे कि मैंने फर्श पर क्या किया, ग्लिसरीन का कोई बॉटल गिरा दिया, वो बहने लगेगा, ये हो गया फ्लूइड। जैसे कि कोई हवा चल रही है तो फ्लूइड है, वो जो बहता है वो फ्लूइड है बस। और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी, सेकंड प्रॉपर्टी इरोटेशनल। सो प्रीवियस टू दिस वी हैव सीन हियर द रोटेशनल डायनामिक्स, and in the rotational dynamics we have seen there is the rotation of the body about the fixed axis of rotation. but here क्या होगा, जैसे कि फ्लूइड है तो वो रोटेट नहीं होना चाहिए, रोटेट होता है तो अपन रोटेशनल बोलेंगे, बट लेकिन यहाँ पे क्या है, इरोटेशनल है। जैसे कि कोई फ्लूइड है वो ऐसे रोटेट हो रहा है, ये क्या हुआ, रोटेशन हो गया, रोटेशन हो गया। अगर ये रोटेशन नहीं होता है तो क्या बोलेंगे अपन, इरोटेशनल। अब ये रीरोटेशनल कब होगा, कि जैसे कोई फ्लो है वो फ्लो ऐसा क्या होगा, एक सिमिलर लेयर्स में चलेगा। दिस फ्लो ऑफ द फ्लूइड मस्ट बी स्मूथ और लैमिनर। अगर ये इस ढंग से फ्लो होता है इसके बोलेंगे अपन स्मूथ फ्लो, या तो फिर क्या बोलेंगे, लैमिनर फ्लो, लैमिनर फ्लो। अगर इस फैशन में, ऐसे ढंग में, इन पैरेलल लाइंस में स्मूथली अगर कोई फ्लूइड फ्लो होता है तो उसे क्या बोलेंगे अपन, इरोटेशनल प्रॉपर्टी बोलेंगे। और इरोटेशनल ये क्या होता है, यहाँ पे टर्बुलेंस फ्लो, इसमें क्या होता है, टर्बुलेंस, यहाँ पे क्या होता है, ऐसे भौरे क्या होते हैं, भौरे व्हर्लपूल क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। अगर यहाँ पे व्हर्लपूल या तो फिर टर्बुलेंसेस प्रोड्यूस होते हैं अंडर द फ्लो ऑफ द फ्लूइड, दैट fluid cannot be said as a referred as a ideal fluid. Only if the flow of the fluid is smooth and laminar without any turbulences, then that is called the irrotational fluid or the ideal. So this is the second property of the ideal fluid. Understand? Number third property is non-viscous. अब non-viscous क्या होता है, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ने ग्लिसरीन लिया और ग्लिसरीन को मैंने यहां पे ऐसे बहा दिया। When the glycerin is poured on the duster or the surface, that is the plane surface, then that glycerin will be flow like this. अब क्या होगा, जब ये ग्लिसरीन फ्लो होगा तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी क्या होंगी, लेयर्स रहेंगी ग्लिसरीन के अंदर। ये ग्लिसरीन का मैंने क्या दिया एग्जांपल ऐसे। बट लेकिन क्या होता है, नॉन विस्कस होना चाहिए। जब ये फ्लो
फ्लो होगा तो क्या होगा, एक लेयर दूसरे लेयर को टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करके रेजिस्ट करेगी, अपोज करेगी। मींस देयर इज अ फोर्स ऑफ अपोजिशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड और द लिक्विड। अगर ये फोर्स टेंजेंशियल फोर्स, द फोर्स ऑफ अपोजिशन, दैट इज कॉल्ड एज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। And if the force of friction vanishes there, if there is no force of friction between the different layers of the fluid while flowing, then that property is called as the non-viscous property. अगर कोई फ्लूइड ये प्रॉपर्टी क्या करता है, एग्जिबिट करता है, फ्लो क्या करता है, फॉलो करता है, then that fluid is called as the ideal fluid। मींस यहाँ पे जो फोर्स है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, अगर ये फोर्स नहीं है, मींस ये कैसे स्मूथली फ्लो हो रहा है क्या, फ्लूइड, तो ये क्या हुआ, नॉन विस्कस। विस्कस एंड नॉन विस्कस। विस्कस में क्या होता है, देयर इज द फोर्स ऑफ अपोजिशन, देयर इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड व्हाइल फ्लोइंग, दैट इज कॉल्ड एज द विस्कस। ये कैसे होना चाहिए, आइडियल फ्लूइड नॉन विस्कस, मींस देयर इज द फोर्स ऑफ अपोजिशन और द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू 0। And if this will be happen, then that fluid is called as the ideal fluid. Next property is the steady flow। तो भाई steady flow क्या होता है कि जैसे मैंने क्या किया, इसको बहा दिया, कोई ग्लिसरीन है, कोई एयर है, कोई गैस है, कोई और लिक्विड है। अगर ये फ्लो होता है और एट एवरी पॉइंट, एट एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। वैसे मान के चलते कि मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई फ्लूइड है, इसमें कोई फ्लूइड ऐसा बह रहा है, ये फ्लूइड बह रहा है, और ये मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, पॉइंट बी कंसीडर किया। अब मुझे क्या करना है, पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे अगर इसका वेलोसिटी मैंने किया कि ये कितना वेलोसिटी है, आयु मीटर पर सेकंड, मान के चलते फॉर एग्जांपल यहाँ भी इसका वेलोसिटी एट दिस टाइम क्या है, आयु मीटर पर सेकंड है, और इसी टाइम में, सेम टाइम में अगर इसने यहाँ पर भी कितना है, आयु मीटर पर सेकंड, मींस वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट विद इन अ लिक्विड व्हिच फ्लोज इज कांस्टेंट रिमेन्स सेम। मींस फॉर एग्जांपल एट दिस पॉइंट ए fluid having the velocity 5 meter per second, at the another point B there are so many numbers of particles points within the fluid। अरे ये पे क्या होता है, A और B दो पॉइंट लिए मैंने, फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे, इसमें बहुत सारे पार्टिकल होंगे, वहां पे क्या होना चाहिए, इसका वेलोसिटी सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज कॉल्ड द स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो क्या होगा, जब भी वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दीस आर द प्रॉपर्टीज व्हिच मस्ट फॉलो बाय द आइडियल फ्लूइड। ओके, थैंक यू।